Hello students, welcome back. Children, in the last few lectures we have been discussing the issues which are related to women, or we have been discussing the problems faced by women in Indian society. Children, then we also saw what is the role of media, how media plays a negative role as well as a positive role in the status of women, or the status that women enjoy or suffer in the Indian society. Children, in today's lecture, we are going to focus on what are the solutions to the socio-economic problems of women in India. In the sense, like children, we'll just try to analyze, like if there are problems that are being faced by the women, then what are the solutions that we recommend for the betterment of the woman in Indian society. Acha, so let's list out what are these solutions that we have, children. Now, everyone is quite aware, children, that majority of the problems that our society faces, the biggest solution that can arise is like what's known as education. Majority of the problem, children, can be solved through education. And those people who have realized the importance of education will also know that education can solve almost 90% of the problems that are faced by women. So what does the government require to do? They are supposed to prioritize women to education to women in India. At the same time, children, we know that free education is provided to girls up to 12th standard. Acha, there are certain states where states provide free education to girls up to graduation. Acha, state governments have gone a step further, children, we can say, that is graduation tak girls ke liye free education. At the same time, children, I think those people or those girls who want to pursue higher education, the government will provide them with some special incentives so that they are motivated to go for higher education. Okay, so that's the first solution, children. Then the second one, a society needs to have a lot of social awareness campaigns. Social awareness campaigns are basically for promoting the betterment of for the cause of women. जैसे कि चलो बहुत सारे we have got lots of malpractices in Indian society. Now it's like discrimination against the woman. तो अगर हम लोग एक कैंपेन्स के जरिए वुमेन के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको अगर हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, अच्छा, या फिर जो भी हम लोग कैंपेन्स अंडरटेक करते हैं, वी कैन शो वुमेन इन अ वेरी डिग्निफाइड एंड ए पॉजिटिव रोल. और बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बच्चों लोग, एनजीओस, जो ऐसे कैंपेन्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं. इट कुड बी प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर्स दे सकते हैं बच्चों लोग. अच्छा, तो अवेयरनेस कैंपेन्स बच्चों लोग कुड बी रिलेटेड टू व्हाट? तो इट कुड बी समथिंग रिलेटेड, चिल्ड्रन, टू फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटी डाउरी कैंपेन. क्या है एंटी डाउरी कैंपेन? It's one of the malaies of the Indian society, children, that presently those people who are highly educated, they also involve themselves in demanding high amount of dowry from the girl child. So I think we need to have campaigns which will be coming against that, we can say. At the same time, children, we also need to highlight the education for women. वो भी एक campaign चला सकते हैं. तो ये हो गया अपना डाउरी का campaign होता है बच्चों लोग. अच्छा, then we need to highlight the education for the women. क्या हाईलाइट करना हम लोग को? एजुकेशन फॉर वुमेन. अच्छा, विडोज को मैरिज करने के लिए अलाउ होना चाहिए. एंड द सेम टाइम, चिल्ड्रन, वी नीड टू हैव एंटी चाइल्ड मैरिज कैंपेन. सो पहला होता है सोल्यूशन बच्चों लोग एजुकेशन, दूसरा होता है कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स. अच्छा, देन whenever there is any kind of exploitation of women that takes place, children, so is there any kind of constitutional remedies for the women's status? Yes. But what happens is like we have got very complicated and difficult procedures कि like women मतलब वहां पे solutions ढूंढने के लिए जाना नहीं चाहते बच्चों लोग. तो हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे situations में? Children, जो legal procedure आता है, मतलब अगर किसी औरत के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, अभी उसको कुछ लीगल एडवाइस चाहिए, फिर उसको लीगल रेमेडी चाहिए, तो उसके लिए जो प्रोसेस आता है तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अच्छा, तो कम से कम ऑल द वुमेन, चिल्ड्रन, हु आर डिसएडवांटेज, they can take advantage of such
simple procedures and they can seek justice. मतलब चलो जैसे कि औरत अगर एक आध फाइल कंप्लेन करने के लिए जाती है पुलिस स्टेशन में तो शुड नॉट बी मैल ट्रीटेड, क्योंकि हमने देखा है चलो या फिर हमने सुना हुआ है बहुत सारे ऐसे जो केसेस जाते हैं वुमेन के खिलाफ, हाफ ऑफ देम कुड बी कमिटेड व्हेन दे आर इन पुलिस कस्टडी. अच्छा, देन वी आल्सो कम अक्रॉस इफेक्टिव रोल ऑफ पुलिस फोर्स. Police children, they need to play a very positive role in handling women related cases. अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है बच्चों लोग कि like women they need to be shown some amount of empathy, or the women children who are victimized, हाँ तो they need to be given some amount of sympathy, empathy. अच्छा, और ऐसे situations में बच्चों लोग I think appropriate complaint should be filed against harassment या फिर maltreatment. और इसीलिए मुझे लगता है कि बच्चों लोग ऐसे पुलिस फोर्स में ज्यादा वुमेन का होना बहुत जरूरी है. सो आई थिंक दे वुड बी गेटिंग सम एडवांटेज फॉर पुटिंग फॉरवर्ड देयर ग्रीवेंसेस. उनके जो कंप्लेंट्स होते हैं उनको शायद लीगल प्रोसीजर तक लेके जाने के लिए ये पुलिस वुमेन उनको हेल्प कर सकती है. अच्छा, देन चिल्ड्रन वी हैव गॉट दिस स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू लेजिस्लेशन. मतलब क्या होता है बच्चों लोग कि लाइक जो भी लेजिस्लेशन है, जो भी कानून है बच्चों लोग, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स होते हैं, हाँ तो दे शुड अडहेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड इफ एनी पर्सन, एनी कल्प्रिट चिल्ड्रन इज फाउंड गिल्टी फॉर कमिटिंग एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट वुमेन, तो दे शुड बी इफेक्टिवली पनिश्ड एट द सेम टाइम. हो सके तो उनको इम्प्रिजन किया जाए, या फिर बहुत सारे केसेस में चिल्ड्रन वी कैन आल्सो अवॉर्ड देम विद डेथ सेंटेंस. So if that enough punishment is given, मुझे लगता है कि लाइक अगर ऐसे पनिशमेंट्स इफेक्टिवली दिए जाएंगे तो आगे जाके जो लोग ऐसे औरत लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं उनके लिए एक सबक होगा बच्चों लोग कि लाइक इफ दे कमिट समथिंग heinous crimes then they will be punished and severely punished so that they would refrain from committing any kind of exploitation or violence against women, any crimes against women children. अच्छा, then we come down towards support from religious leaders. चलो हमारे कल्चर में, हमारे थिंकिंग में, हमारे अपब्रिंगिंग में जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है. दे शेप आवर बिलीफ सिस्टम एवरी डे. पीपल व्हेन दे गो टू ऑफर नमाज, या फिर व्हेन दे गो टू अ टेंपल, या फिर व्हेन दे गो फॉर अ मास ऑन संडेज, तो वहां पे जो हमारे कम्युनिटी के लीडर्स होते हैं वो लोग एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं फॉर रिस्पेक्टिंग द वुमन एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली. और मुझे लगता है इफ यू डेवलप अ वुमन द फैमिली वुड डेवलप एंड अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी द डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर सोसाइटी इन जनरल. अच्छा, तो ऐसे रिलीजियस लीडर जैसे कि चलो अगर संडे की मास में बैठा हूं और वहां पे फादर ने मुझे बोला कि लाइक हाउ वी आर सपोज टू रिस्पेक्ट वुमन, हाउ वी आर सपोज टू बी एम्पावरिंग वुमन, तो धीरे धीरे करके एक चीज मेरे मन में बैठ जाएगी एंड आई वुड बी contributing to the protection of women and respectable life for the women in our society children. So for that we need to follow the preaching that is given by the religious leaders, and in every society children they tell us to respect women. Acha, then special encouragement for women achievers. गवर्नमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बच्चों लोग, हाँ तो जो औरत लोग अलग अलग फील्ड्स में कुछ हासिल करते, कुछ कामयाबी हासिल करके दिखाते बच्चों लोग, तो उनके अचीवमेंट को हम लोगों को हाईलाइट करना चाहिए. इट शुड बी शोन टू द अदर गर्ल्स इन आवर कंट्री. अच्छा, ऐसे वुमेन को जिन्होंने कुछ हासिल किया बच्चों लोग उनको टाइम टाइम पे फेलिसिटेट करना चाहिए. दे शुड बी गिवन स्पेशल अवार्ड्स, उनको इंसेंटिव्स देने चाहिए. हाँ तो इससे क्या होगा बच्चों लोग, बाकी की वुमेन को ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, अलग अलग कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लेने के लिए उनको भी थोड़ा फायदा होगा. एंड इट इज गोइंग टू पे वेरी रिच डिविडेंड्स टू द एंटायर सोसाइटी फॉर द लॉन्ग टर्म चिल्ड्रन. ओके, अच्छा, देन वी वर आल्सो डिस्कसिंग चिल्ड्रन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर फेस्ड बाय वुमेन एट वर्क प्लेसेस ना. सो वी नीड अ पॉजिटिव अप्रोच एट वर्क प्लेस. द एम्प्लॉयर्स, द मेल कॉलीग्स, they should have a very positive approach towards women at the workplace. They should not look down upon women employees. Matlab they should be treated at par with the male employees. And it's like, synergy, teamwork. Wherever possible, women employees must be given due credit. और उनको हो सके तो प्रमोशन भी दिया जाए. हमने देखा था किस तरीके से मेल एम्प्लॉइज कभी नहीं चाहते कि कोई वुमन उनको बॉस करे.
और इसलिए उनको कभी प्रमोशंस नहीं दिए जाते बच्चों लोग, बट दैट इज रॉन्ग। इफ दे डिजर्व दे शुड गेट द ड्यू क्रेडिट फॉर देयर अचीवमेंट्स। देन द इफेक्टिव रोल ऑफ NGO, that is non-governmental organization, they can play a leading role in uplifting the status of women in India। तो औरत लोगों से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसको हाईलाइट करना, उसको फोरम में लाना। अच्छा, जो विक्टिम्स है बच्चों लोग, उनको थोड़ा हम तो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जब वो लोग क्राइसिस फेस करते रहते हैं, जैसे रेप विक्टिम है बच्चों लोग, तो उसको न्याय दिलाने में हेल्प कर सकते हैं, उसको सोसाइटी में वापस से एक एक्सेप्टेंस मिले, इसके लिए भी वो लोग कोशिश कर सकते हैं, राइट। एंड एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, इफेक्टिव वुमन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। बच्चों लोग, आज भी औरत लोगों के लिए अगर कोई लॉ बनाने की कोशिश की जाती है तो आधे से ज्यादा लॉज पास नहीं होते, क्योंकि वहां पे लेजिस्लेचर में जो बैठे हो वहां पे वुमेन का नंबर ऑब्वियसली कम होगा। तो सेंटर में, स्टेट में, आई थिंक वी नीड टू हैव appropriate representation for the women। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल आई थिंक लाइक पार्लियामेंट में है, तो वहां पे अगर अच्छा खासा उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, इमेजिन अबाउट 50% वुमेन रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनके लिए जो बेनिफिशियल लॉज है, जो कानून होने चाहिए, उसको पास कराने में उनका बहुत बड़ा रोल होगा बच्चों लोग। सो these were some of the solutions to the problems that women face in a society, children। Okay, now we saw problems of women, the status of women, the role of media in the life of women, we can say, children. Then we also spoke about the socio-economic problems of women in India, and ultimately children, we have come down to what are the solutions for the problems faced by the women। अभी अपना नेक्स्ट डिस्कशन का पार्ट जो है बच्चों लोग, इट्स रिलेटेड टू हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड पर्संस। ओके, तो ये अपना पूरा सेक्शन रहेगा बच्चों लोग जो हैंडीकैप लोगों के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लाइक व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय हैंडीकैप्ड या फिर डिसेबल्ड, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है उसको पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स का डिसेबिलिटी होता है चिल्ड्रन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव व्हाट्स नोन एज विजुअली हैंडीकैप्ड। कौन होते हैं लोग? विजुअली हैंडीकैप्ड। नाउ इन सिंपल टर्म्स चिल्ड्रन वी कॉल देम एज ब्लाइंड पीपल। क्या बोला था उनको हम लोग? ब्लाइंड पीपल। अच्छा, देन चिल्ड्रन वी हैव दोस ऑडिटोरियली हैंडीकैप्ड पीपल। ऑडिटोरियली मतलब चलो ऑडियो इज लाइक साउंड, साउंड नहीं आता तो उनको हम लोग क्या बुलाते हैं? डेफ। देन दोस पीपल चिल्ड्रन हु आर स्पीच इम्पेयर्ड। स्पीच मतलब बोलना, तो कौन होते हैं लोग? गूंगे होते हैं ना, यस, डम पीपल। Then there are some people who are orthopedically handicapped, that is physical disability, movements में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम लोगों को पता है पोलियो आता है एक। And there are some people, children, who are referred to as the mentally challenged people। Okay, so blind, the deaf, the dumb, physically disabled and mentally disabled। अच्छा, अभी आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो हैंडीकैप या फिर एग्जाम्पल के लिए डिसेबिलिटी होता है, इट इज ईदर इनबॉर्न यानी जन्म से होता है, या फिर इट माइट टेक प्लेस और इट माइट अकर ड्यू टू सम काइंड ऑफ सिकनेस और एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स दैट टेक प्लेस चिल्ड्रन। अच्छा, अभी सबसे पहले एक बात हम लोगों को क्लैरिफाई करनी चाहिए कि हैंडीकैप लोगों को आपके सिंपैथी की जरूरत नहीं होती है, उनको दया दिखाने की जरूरत नहीं होती है बच्चों लोग। व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स इज लाइक अ रिस्पेक्ट, एंड वी नीड टू ट्रीट दिस पीपल लाइक नॉर्मल पीपल। तो ऐसे लोगों को पहले अपंग बोला जाता था, लेकिन ये डेरोगेटरी और मुझे लगता है इंसल्टिंग वर्ड था, तो गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ न्यू रिस्पेक्टेबल वर्ड फॉर दिस पीपल व्हिच इज कॉल्ड एज स्पेशल पीपल। तो जहां पे अपंग था उनको अभी दिव्यांग करके बोला जाता है बच्चों लोग। ओके, सो वी विल प्रोवाइड लॉट ऑफ सपोर्ट एंड कोऑपरेशन फ्रॉम द पीपल फॉर द रिस्पेक्टेबल लाइव्स ऑफ दिस पीपल, वी कैन से चिल्ड्रन। ओके, नाउ अभी इनके बारे में थोड़ा सा कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा देखते हैं पहले। व्हाट स्टैटिस्टिकल डेटा दिस पीपल हैव प्रोवाइडेड हियर, कि अपने देश में बच्चों लोग कम से कम 100 मिलियन डिसेबल्ड पीपल यू कैन फाइंड अराउंड। कितने? 100 मिलियन डिसेबल्ड पीपल। अच्छा, इसमें से 25% लोग तो ऐसे होते हैं जो फिजिकली चैलेंज सॉरी मेंटली चैलेंज्ड है। 15% ब्लाइंड। परसेंटेजेस दिए चिल्ड्रन, कितना था ये? 100 मिलियन, मतलब कितने? 10 करोड़ हो गए। उसमें से बच्चों लोग कम से कम 2.5 करोड़ लोग मेंटली चैलेंज होते हैं। अच्छा, कम से कम 15% लोग बच्चों लोग ब्लाइंड दिखेंगे आपको,
and then we got 30% people who have got very low vision. 15 to 20% they suffer from speech impairment and hearing. अच्छा, और बाकी के जितने भी लोग रहते हैं चिल्ड्रन, तो दे विल बी एक्चुअली फेसिंग सम ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स. कौन से प्रॉब्लम्स रहेंगे इनके? ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स. सो इट्स लाइक मूवमेंट या फिर बोन्स के प्रॉब्लम्स रहते हैं इनके. अच्छा, अभी जितने हैंडीकैप लोग होते हैं, जितने डिसेबल लोग होते हैं, उसमें से 55% लोग तो इलिटरेट होते हैं. अ गुड नंबर ऑफ द डिसेबल बिलोंग टू द पुअर फैमिली. ज्यादातर गरीब लोगों में मैल न्यूट्रिशन की वजह से, बिकॉज दे डू नॉट गेट प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, दैट इज व्हाई यू फाइंड दिस. ओके, नाउ विजुअली हैंडीकैप्ड के बारे में अभी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाते हैं. विजुअली हैंडीकैप्ड, दे आर पार्शियली और टोटली ब्लाइंड पीपल. We got the National Program for Control of Blindness provides 3 levels of definition of blindness. अभी आपको पता है बच्चों लोग, हम लोग जब ग्लासेस वगैरह स्पेक्स लेने के लिए जाते तो आपको नंबर वगैरह बताते ना कि अपना नंबर इतना है, -2 है, -4 है. ओके, तो यहाँ पे कुछ मेडिकल टर्म्स दिए, आपको सिर्फ नंबर से याद रखना है. अच्छा, आप सबसे बेस्ट स्पेक्टिकल्स यूज करते हो बच्चों लोग, लेकिन फिर भी आपका साइट जो आपका विजन 6/6 या फिर उससे कम रहेगा तो आपको ब्लाइंड बुलाया जा सकता है. या फिर एक आई का फील्ड 20 से लेस रहेगा तो भी उसको हम लोग ब्लाइंड बुलाते हैं. या फिर एक आई आपका 6/6 से लेस है, अच्छा, और दूसरे फील्ड का आई 20 या फिर उससे कम है, तो ऐसे लोगों को हम लोग ब्लाइंड करके रिफर करते हैं. वी कॉल देम एज ब्लाइंड पीपल. अच्छा, now who is exactly a blind person, children? A person who can sense the presence of a person but cannot recognize him. And he cannot tell whether he's a male or a female. He cannot read. He cannot recognize the color. Or even if she is not totally blind, ऐसे लोगों को भी हम लोग blind बुलाते हैं. Okay. अभी blindness में children we have got various diseases which are related to the eyes. उसमें से सबसे पहला जो आता है जिसको हम लोग cataract करके बुलाते हैं. ये तो आपको पता है, मोतिया बोलते हैं उसको, मोती बिंदु. अच्छा, तो मुझे लगता है कि लाइक अपने इंडिया जैसे कंट्री में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु बिकम ब्लाइंड आर ड्यू टू कैटरैक्ट. इट्स लाइक आईज का जो ट्रांसपेरेंसी का जो लेंस रहता है बच्चों, वो खराब हो जाता है, एंड देयर इज सम थिक सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड ऑन द आईज एंड देन यू आर नॉट एबल टू सी. तो जैसे जैसे आपका एज होगा, जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाओगे, तो उसकी वजह से पीपल डेवलप कैटरैक्ट. इट कैन बी ड्यू टू इंजुरी, या फिर there are sometimes children those ultraviolet rays which affect the eyes. It could be due to medicines, diabetes की वजह से. हाँ, लेकिन इस सबका solution आपको पता है that this can be solved through surgery. तो majority of the people they get the cataract operation done and then they can restore their eyesight. एक दूसरा आता है children which is referred to as glaucoma. क्या बोलते हैं इसको? ग्लोकोमा. तो आईज के अंदर बच्चों जो लिक्विड आता है, फ्लूइड आता है, वो कॉम्प्रेस होता है और उससे बच्चों लोग एक आध विट्रियस बॉडी तैयार होता है, ऐसा लंप. अच्छा, और उसकी वजह से बच्चों लोग अपने आईज के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो रेटिना होता है, उसके ऊपर प्रेशर आता है और उसकी वजह से फिर लोगों को ब्लाइंडनेस. तो आईज के अंदर लिक्विड वो थिक बन जाता है बच्चों लोग, अपने आईज के रेटिना के ऊपर प्रेशर जाएगा, न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं बच्चों लोग, एंड देन यू आर नॉट एबल टू सी. तो कैटरैक्ट के बाद लोगों के अंधे होने का सबसे बड़ा रीजन होता है बच्चों लोग ग्लोकोमा. अच्छा, आफ्टर ग्लोकोमा children we come across what is known as trachoma. These are all funny words children that we have. It's a serious form of conjunctivitis. आईज एकदम रेड होते हैं बच्चों लोग, जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी, बाहर का कोई सब्सटेंस वगैरह बच्चों लोग जैसे अपने आईज में एंटर करता है, तो सीवियर पेन बैक्टीरिया से भी कॉज होता है. अच्छा, 20% लोग अंधे होने के पीछे का रीजन होता है ट्राकोमा. कंजंक्टिवाइटिस यानी आंख आना बोलते हैं ना, यस, व्हिच डेवलप्स दोस रेड रैशेस. अच्छा, फिर आते हैं बच्चों लोग डिजीज. अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल there could be things like diabetes. Secondly, we will also have the smallpox, hypertension, the blood pressure and all. ये सब की वजह से भी आईज को इफेक्ट हो सकता है. या फिर चिल्ड्रन इट कुड बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. अच्छा, अगर सपोज फॉर एग्जांपल आईज में विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो गया तो आपका जो आईज का कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया वो ड्राई होता है बच्चों लोग, अल्सर डेवलप होगा बच्चों लोग. नाइट ब्लाइंडनेस is one of the symptoms that you see because of deficiency of vitamin A. अच्छा, and this type of blindness is mostly among poor children due to malnutrition or deficiency. तो जिन बच्चों को खाने के जरिए विटामिन ए मतलब sufficiently नहीं मिलता है, ऐसे बच्चों को मतलब ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है. Then we have got children hypermetropia. अच्छा, that's
Actually, it's most common children as far sightedness. मतलब like for example, distant objects can be seen clearly and nearer objects can't be seen clearly. तो आपको दूर की चीजें अच्छे से दिखाई देगी, लेकिन जो नजदीक की चीजें होती है वो अच्छे से दिखाई नहीं देते. तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बुलाते हैं चिल्ड्रन? We call it as hypermetropia. तो आई थिंक बाय कॉन्वेक्स लेंस यूज करके, जो ग्लासेस होते हैं वो यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं. देन वी हैव गॉट द एस्टिग्मेटिज्म. अच्छा, इसमें क्या होता है कि लाइक आपका विजुअल एक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज होता है. तो इट कुड बी लाइक हेडेक. मतलब हेडेक इज वेरी कॉमन अमंग दिस पीपल. तो सिलिंड्रिकल लेंस यूज करके हम लोग ऐसे लोगों के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं. देयर कुड बी सम अदर प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड हियर चिल्ड्रन. इट कुड बी एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रेटिनास, या फिर कभी आपकी ब्रेन को इंजुरी हो गया, इट कुड अफेक्ट द आईज, या फिर इट कुड बी समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स. तो मतलब बाय बर्थ वी कैन से. अच्छा, नाउ चिल्ड्रन the question arises कि like how will these people be treated? ऐसे लोगों को ट्रीट कैसे किया जाता? अच्छा, तो जो ऑप्टिशियंस होते हैं ना बच्चों लोग, उनका एक्चुअल साइंटिफिक वर्ड क्या आता है देख लो जरा यहाँ पे. दे आर कॉल्ड एज ऑप्थेमोलॉजिस्ट करके बोला जाता है. इट्स अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ आईज प्रॉब्लम्स. अभी जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया चिल्ड्रन, कैटरैक्ट का ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल होता है. कॉर्निया को बच्चों, ये जो कॉर्निया था आपके आईज का, उसको भी हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. ट्राकोमा बच्चों लोग, उसको अगर हम लोग टाइम पे ट्रीट करेंगे तो भी हम लोग ब्लाइंडनेस को अवॉइड कर सकते हैं. हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उनको कंट्रोल करके रखोगे तो आपके आईज भी हेल्दी रहेंगे. अच्छा, खाने के जरिए बच्चों लोग, फूड के जरिए चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट विटामिन ए. अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन एंड सप्लाई ऑफ विटामिन ए डज नॉट रिक्वायर रिच फूड. जैसे कि चिल्ड्रन इफ यू कुड गो टू ईट सम वेजिटेबल्स, कैरेट्स, फॉर एग्जांपल लेमन, गावा. अच्छा, तो ये बहुत सस्ती मिलने वाली चीज है और इसकी वजह से बच्चों आपके आईज बहुत हेल्दी हो सकते हैं एंड कुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजन चिल्ड्रन. ओके, सो दीज वर सम ऑफ द सॉल्यूशंस चिल्ड्रन दैट वी हैव फॉर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद आवर आईज. अच्छा, नाउ the next thing that we understand here children is actually related to the auditorily handicapped people. Who are these people? Auditorily handicapped people. Audio children, it's like mostly related to the hearing, right? अच्छा, तो साउंड को मेजर करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है आपको पता होना चाहिए पहले. इट्स लाइक डेसिबल्स. कौन सा वर्ड आता है? डेसिबल्स. नॉर्मल हियरिंग बच्चों 0 से 30 डेसिबल्स के बीच में होता है. अच्छा, 30 डेसिबल के ऊपर का भी साउंड अगर बच्चों लोग नहीं आ रहा है आपको, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आप क्या हो? डेफ हो करके. डेफनेस आई थिंक लाइक इज इन्वॉल्व्स अ सिग्निफिकेंट और टोटल लॉस ऑफ हियरिंग. एंड डेफ पर्सन्स, दे कैन नॉट हियर एंड दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द नॉर्मल पीपल टॉक टू देम. तो दैट कुड बी वेरी डिफिकल्ट वी कैन से. तो एंड नॉर्मली चिल्ड्रन हु आर बोर्न डेफ आर आल्सो डम. तो जिन लोगों का जन्म बच्चों लोग क्या होता है? डेफ होता है, जो बहरे होते हैं जनरली. तो ऐसे लोग डम भी होते हैं क्योंकि वर्ड्स अगर आप कभी सुनोगे नहीं तो फिर आप उनको बोलोगे कैसे. सो ऐसे बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है सो दैट दे कैन डेवलप देयर स्पीच, या फिर हियरिंग एड भी यूज किया जाता है बच्चों लोग. कौन कौन से टाइप्स का डेफनेस होता है देख लेते हैं एक बार. सबसे पहला आता है चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज कंडक्शन डेफनेस. इसमें क्या होता है बच्चों लोग कि लाइक अपने जो कान होते हैं उसका आउटर और मिडिल लेयर जो होता है वो खराब होता है इसमें बच्चों लोग. तो साउंड इज नॉट ट्रांसमिटेड टू द कॉक्लिया. अच्छा, जो स्पाइरल शेप होता है ना बच्चों अपने कान के अंदर, वहां से साउंड ट्रांसमिट नहीं होता है. तो मिडिल और आउटर लेयर जब खराब होता है तो आप उसको क्या नाम दोगे? कंडक्शन डेफनेस. देन चिल्ड्रन देयर इज समथिंग लाइक सेंसरी या फिर न्यूरल डेफनेस आता है. अच्छा, इसमें भी इट्स लाइक द इंपेयरमेंट ऑफ द कॉक्लिया, द स्पाइरल पार्ट. तो इसमें इनर ईयर काम नहीं करता है बच्चों. इनर ईयर तो ध्यान रखना, मिडल और बाहर का काम नहीं करेगा तो कंडक्शन होता है. इनर ईयर काम नहीं करता बच्चों तो इट्स सेंसरी न्यूरल डेफनेस. और एक होता है मिक्स्ड, मतलब आउटर, मिडल और कॉक्लिया यानी इनर ईयर, ये तीनों भी खराब होते तो इट्स कॉल्ड अ मिक्स्ड. सो 3 टाइप चिल्ड्रन: कंडक्शन डेफनेस, वी गॉट सेंसरी डेफनेस एंड देन वी गॉट अ मिक्स्ड डेफनेस. ओके, अच्छा, अभी सवाल आता है कि लाइक कॉजेस क्या होते हैं. तो कॉन्जेनाइटल डेफनेस कैन बी कॉज्ड ड्यू टू, पहला प्रॉब्लम होता है चलो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी इट्स लाइक आपके पेरेंट्स से आपको विरासत में मिलेगा ये.
अच्छा, फिर जैसे एक बीमारी होता है चलो जिसको हम लोग जर्मन मिजल्स बोलते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर किसी मम्मी को जर्मन मिजल्स होता है चलो, तो उसके बच्चे का वो फीटस होता है ना, कोख में पलने वाला छोटा सा बच्चा, उसका इनर ईयर बच्चों खराब होता है, तो सेंसरी न्यूरल डेफनेस आता है। अच्छा, आपको पता है चलो जब बच्चे का जन्म होता है, व्हेन द चाइल्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द मदर्स वूम, तो बच्चे को ना पकड़ने के लिए ऐसे फॉर्सेप्स यूज किए जाते हैं। क्या? फॉर्सेप्स। तो बच्चों को जब ऐसे सिर से पकड़ के पुल आउट किया जाता है, तो कभी कभी ज्यादा प्रेशर जाएगा यहाँ पे, तो बच्चे लोग फिर उससे डैमेज होता है ब्रेन को, और उसकी वजह से भी सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी के टाइम पे गलती से भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेना है आपको, क्योंकि वो एंटीबायोटिक मतलब चलो कैसे लिविंग थिंग्स अंदर जो लिविंग बॉडीज होती है उसको मार डालता है ना, तो वो जो बच्चा पल रहा है चलो कोक में, वो भी एक बॉडी होता है ना, तो एंटीबायोटिक्स की वजह से उसको भी डैमेज हो सकता है। ओके, तो एक कॉन्जेनाइटल डेफनेस हो गया। एक दूसरा आता है चिल्ड्रन विच इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड डेफनेस। अभी एक्वायर्ड डेफनेस किसकी वजह से आएगा? आपको कभी पीलिया होता है चलो, जॉन्डिस, टाइफाइड की वजह से, मीजल्स होते हैं, एंड दे कुड हैव सम साइड इफेक्ट्स, उसमें से एक आता है डेफनेस। अच्छा, चिल्ड्रन मेनी टाइम्स इट ऑल्सो बी ड्यू टू एक्सीडेंट्स, नॉइज पॉल्यूशन की वजह से, व्हेन योर ईयर्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीमली साउंड नॉइज। इसलिए जब आप अपने मोबाइल का साउंड भी ऑन करते हो ईयरफोन, तो वहां पे एक वार्निंग आता है कि लाइक ज्यादा लाउड साउंड सुनना आपकी ईयर्स को डैमेज कर सकता है करके। अच्छा, अभी सवाल आता है कि लाइक ये सबको ट्रीट कैसे करने का, हाउ आर ऑल दिस थिंग्स ट्रीटेड। अच्छा, जो डेफनेस बच्चों लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आता है, जैसे ज्यादा साउंड्स की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, अच्छा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? क्विकली ट्रीट कर सकते हैं, हाँ, नहीं तो फिर धीरे धीरे आपके स्पीच डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेगा। अच्छा, द सेंसरी न्यूरल डेफनेस या फिर द कॉन्जेनाइटल डेफनेस कैन नॉट बी क्योर्ड। अच्छा, मतलब ये डिफेक्ट जो आता है बच्चों के अंदर जन्म से ही होता है, तो इसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, तो ऐसे बच्चों को हम लोग कुछ हियरिंग एड दे सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी होता है, टाइम भी दिया जाएगा। अच्छा, तो पेरेंट्स को ये सब चीजें पता होनी चाहिए, सो आई थिंक पेरेंट्स शुड बी एबल टू टेक सम केयर सो दैट दिस प्रॉब्लम्स आर नॉट कॉज्ड टू द चिल्ड्रन, वी कैन से। देन वी हैव गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट हियरिंग एड्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस टू द ऑडिटोरियली चैलेंज पर्सन मस्ट बी गिवन फोकस। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स है वो लोग तुरंत मतलब कुछ हियरिंग एड यूज कर सकते हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम चिल्ड्रन, पब्लिक दे नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट सर्टेन डिजीज दैट कॉज डेफनेस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी में अगर मम्मी को जर्मन मिजल्स होते हैं तो बच्चे के डेफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे, तो इस बीमारी को अवॉइड करना पड़ेगा ना। तो जर्मन measles during pregnancy can affect the fetus's ear development and can lead to sensory neural deafness. Now, the German measles can not only cause severe sensory neural deafness, they can also make a child mentally retarded or totally blind. Okay? Acha. What did we study today, children? I told you about the solutions for the socio-economic problems of women in India. At the same time, children, I also told you about what are these handicaps, ना, disabled people. दो पढ़ा है मैंने आपको, एक visually handicapped और दूसरे होते बच्चे लोग what are called as auditorially handicapped. Okay. In the coming lecture, children, we will be focusing on what are called as the orthopedically handicapped people. क्या पढ़ेंगे? Orthopedically handicapped people. और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले बच्चों लोग मेंटली चैलेंज्ड लोगों के बारे में। अच्छा, जैसे ही ये सॉल्व होता है तो फिर आई विल बी टेलिंग यू अबाउट व्हाट इज रिलेटेड टू द सर्विसेज व्हिच आर अवेलेबल टू द हैंडीकैप पीपल इन इंडिया। इसके साथ में ये अपना चैप्टर खत्म होगा और एक लेक्चर आगे के चैप्टर्स बच्चों हम लोग खत्म करने वाले जल्दी से, क्योंकि मुझे लगता है अभी इसके आगे के जो भी टॉपिक्स रहेंगे दे आर नॉट सो लेंथी एंड वी कैन कंप्लीट देम सूनर. So many people have, I think, university is talking about conducting the exams and all. So don't worry, like it will be easier for you all. Like descriptive या फिर MCQ वाला जो भी रहेगा, so I think like most probably you might be having the online exams. So we'll be helping you with how to handle those things. So don't worry. So in the coming lecture, children, as I said, we'll be completing this topic. तो अपने दो chapters खत्म हो जाएंगे और दो chapters मतलब चलो वहीं पे आपका 30 marks का वेटेज हो गया, ठीक है, उससे भी ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो.
Okay, I'll be telling you about the paper pattern in the coming lecture. फिर आपको पता चलेगा कि हमको ये पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है. So that's all for today, children. We'll continue in the next lecture with the completion of this topic. Bye everyone. Take care.